video. Which video? Okay, you can make a video and you can send it to me privately. So then we will start. Now, everyone, please let me call the name Yes, of the please. present students: Hamad Shehzad, Kista, Nurul Hadi, Abdullah Alvi, Ali Abbas, Anabia, Ayan Khalil, Danial, Hassan Ahmed, Hassan Raza, Jafar, Kabir, Kanza, Maryam, Sabika, Mohammed Ali, Zara Abbas. Yes, see. Yes, everyone, please open the video, open the book, and I'm just muting you all because the voices houses Miss disturbing page us a number. lot. Wait a minute. Wait a minute. Yes, Zara, you have to step it on. Okay, Daniel, Sabika, Mariam, Hassan, Ali Abbas, and Kanza, Ali Mehdi. Ali Mehdi, okay, fine. Kabir, Hamad, Hassan, Nurul Hadi Jafar, Kissa, Ayal Khalil. Okay, fine. Now, everyone, please take a look to your book. I have explained you the till the orientation. I have explained you till the orientation that what does orientation mean, and I have shared the screen with you all, and we have done with that. Till page number 60 we have done. We are here with page number 61. Over here we will talk about the page. Then we go for the orientation. We can change. We can change the orientation presentation. For example, I have told you that when we go for the orientation portion, we have the option of landscape and portrait. I can show you. This is the landscape. This is the portrait option. Can you see me all? Where is my video? Okay, this is the portrait one and this is the landscape one. Okay, ये फर्क होता है portrait और landscape का. मैंने आपको screen share करके दिखाया भी था. Okay, yes Jafar, आपको please चलें. Okay, yes Jafar and Abdullah Alvi, what do you want to ask? Hurry up, ask me. The page. This is page number 61. We are in page number 61. We are coming to the setting of the paper size. So I will tell you how to do the paper size. Okay. Paper fine. This is 61. Let me share the screen with you all and then I'll explain you. In the previous class, I've explained you about the orientation. I've explained you about the margins and the rulers. I have explained about these things. Today, I will discuss about the page size, setting of page size option. Let me share the screen with you all. Okay. We are opening the Word document. Here we have the options. The page setting is in the page setup option. For example, if you want to go for the paper setting, so we have decided, we have just listen to me. We were in the page layout option. Okay, जब भी हम पेज की कोई सेटिंग करते हैं तो हम यहाँ पर होते हैं. We have discussed about the margins that we have some margins over here. We can go for it. कस्टम मार्जिन पे जाकर हम यहाँ से इसकी अपनी मार्जिन को चेंज कर सकते हैं. पेपर के साइज के लिए मार्जिन के बराबर में जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला था उसके साथ जब हमने नीचे, मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाते हैं. When we click on the margin option in the page layout tab, when we click on the custom margin, we have the option of the margin. Over here we have the orientation option as well. If you want to go for the portrait, it shows like this. If you go for the landscape, it goes like this. Okay, landscape and portrait का आपको preview में option दिख रहा है, right? But we are preferring the portrait option. Then we go for the paper. When we go for the paper, यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि आपके letters कितने होंगे, या फिर आपको A3 पे करना है या लीगल करना है, एग्जीक्यूटिव करना है. वी आर गोइंग फॉर द पेपर साइज, लेटर के पेपर साइज पर. इसकी विड्थ पे जाएंगे, जितनी हमें विड्थ रखनी है
जितनी हमें हाइट रखनी है. वी कैन चेंज इट बाय क्लिकिंग ऑन दीज एरोज. ओके, this is talk about they are talking about the first page and the other page. So we are just using it as a default. If we change anything by ourselves, it will change over here, and the preview will also show us that how we work on it. अगर आपको अप्लाई करना है होल डॉक्यूमेंट पे तो आप होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस पर करेंगे. बट वी आर गोइंग फॉर द पेपर ऑप्शन एट द सेम विच इज ऑन द डिफॉल्ट सेटिंग. ओके, so we click on it. Okay, inserting the page break. आपको page break कैसे लगाना है? Inserting the page break. Go for the insert tab. When we go for the insert tab, we have the option of the page break over here. Then we click on it. So your page will be divided into two portions. आपका page break हो जाएगा दो portion पे. Got it? इसको मैं आपको इस तरह भी करके दिखाती हूँ. Wait a minute. For example, I will write first of all, I'm writing something over here. Let me come on the top. देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन से आपके पास फर्क क्या पड़ा कि आप जो भी लिखोगे वो अलग अलग इस तरह से आ रहा होगा. राइट, आपने अगर एक पूरा डॉक्यूमेंट कहीं से पेस्ट किया है, राइट, और आप पेज ब्रेक लगा देते हैं. मैं आपको यहाँ पर एक मिनट कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाती हूँ. लेट मी ओपन एनी फाइल and then I'll show you how to work on it. फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया, ठीक है, इसको हमें लेबल कर रहा है सबसे पहले. अब इस पोर्शन पे आकर मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट पे पेज ब्रेक लगा दूँ तो इससे क्या डिवाइड हुआ, आपका जो डॉक्यूमेंट था वो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक डिवाइड हो गया दो पेजेस. राइट, आई एम अगेन क्लिकिंग ऑन द कंट्रोल जी ऑप्शन. मैं यहाँ पे रखती हूँ 5 रेड पर, यहाँ से पेज ब्रेक क्लिक कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर का पोर्शन अलग हो गया और यहाँ से हमारा पेज अलग आ गया. राइट, तो जब भी हमें पेज ब्रेक करना होता है हम उस पॉइंट पे रख के वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज ब्रेक होके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है. जहाँ तक हमारा एक पूरा बना हुआ था, अगर मैं इसको सिंपली कॉपी कर लूँ एक जगह, लेट मी कॉपी दिस वन एंड ओवर हियर. राइट, यहाँ पे रखती हूँ मैं मेडिसिन पे रखती हूँ. राइट, इन मेडिसिन से देन आई एम गोइंग फॉर द इंसर्टिंग ऑप्शन एंड इंसर्ट टैब पे जाके पेज ब्रेक कर दिया तो जहाँ से मैंने अपना कर्सर रखा था वो नेक्स्ट पेज पर आ गया. गॉट इट? आई एम अगेन शोइंग इट टू यू. हियर वी हैव दीज थिंग्स. अच्छा चलो मैं एयर 5 को रखती हूँ अलग. यहाँ पे रख के मैंने पेज ब्रेक की क्लिक करा तो एयर 3 और 4 अलग आ गए, एयर 5 से वो नेक्स्ट पेज पर ब्रेक हो गया. गॉट इट? दिस इज द मीनिंग ऑफ पेज ब्रेक. यानी आपने जहाँ भी रख के इसको क्लिक करना होगा तो आपका पेज वहीं से ब्रेक होकर दूसरी जगह पर चला जाएगा. Now come on to the next topic, that is on page number 62, column formatting. As you all seen that we have made a MCQs paper. When we give you the papers, we have given you the options of the MCQs. Okay, it always come in the division of A, B, C. ठीक है, ABC के divisions पे आ रहे होते हैं तो वो किस तरह से divide होता है, let me show you. For example, I would like to divide it in a 3 portion. So we go for the option of page layout and we go for the option in the tab of page layout we go for the column. कॉलम पे जाके यहाँ 2 पे क्लिक करा तो ये देख सकते हैं आपके जो ये बुलेट्स थे ये इस तरह से डिवाइड हो गए. वेट अ मिनट, लेट मी डू दिस अगेन. जैसे यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया. राइट, इनको मैंने कॉलम में जाके डिवाइड कर दिया 2 में. जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 बुलेट इस तरीके से डिवाइड होकर आ गया. राइट, इफ आई वांट टू गो फॉर द 3 ऑप्शन तो ये देखिए ये 3 में डिवाइड होकर आ गए, एक एक बुलेट अलग तरफ से डिवाइड हो गया. राइट, सो द कॉलम ऑप्शन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शन. फॉर एग्जांपल जब भी हम कॉलम ऑप्शन लगाएंगे 1 पे आ गया. जब भी हमें किसी पे कॉलम को डिवाइड करना होगा, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट इट, then we go for the page layout option.
then we have to click on the column. If you want to divide it in a 2 portion, so we go for the 2. I am dividing it in the 3 portion. So ये 3 पे डिवाइड करके हमारे 3 बुलेट्स यानी चैप्टर के तीनों नाम 3 हिस्से में डिवाइड होकर आ गए. Got it? This is the option of column division. It is always come in the page layout option. पेज लेआउट में पेज सेटअप के अंदर कॉलम के अंदर आपके पास आ जाता है ये. Then we go for the paragraph formatting. When we go for the line spacing, for example, let's come in the line formatting. जब भी हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे लाइन स्पेसिंग के लिए हम जाएंगे सबसे पहले होम टैब पर. We go for the home tab. For example, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम दी हुई है. हमने इन तीनों को सेलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ जाके दिस वन लाइन स्पेसिंग इन द होम टैब पैराग्राफ ऑप्शन में हमारे पास लाइन स्पेसिंग आती है. यहाँ पर पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग, अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो और हम चाह रहे हो कि उसमें एक तरीके की लाइन स्पेसिंग आए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं. अभी यहाँ पे डिफॉल्ट हुई हुई है 1.15 एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 1.5. सो यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे हमें इस तरह गैप मिल गया. इससे पहले वाला इस तरीके से, इसके बाद वाला हमारे पास इस तरीके से आ गया लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट करने के बाद. ओके, गॉट इट? दिस इज लाइक दिस. ये हमने समझो पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करा, इसके बाद हम लाइन स्पेसिंग पे गए होम टैब के अंदर एंड यहाँ पे जाके मैंने अगर इसको 2.5 सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए इतने गैप के साथ आ जाएगा. Whenever we are going to start writing any paragraph, for example, I am showing you by writing anything over here. ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट की है वो उस तरीके से हमें लाइन स्पेसिंग शो कर रहा है. अब मैं इसी को लाइन स्पेसिंग चेंज करूंगी किस तरीके से. फर्स्ट आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, गो फॉर द होम टैब, गो फॉर द लाइन स्पेसिंग एंड आई एम सेलेक्टिंग 1.0. तो ये इस तरह हो गई. 1.5 ये इस तरह हो जाएगी. अगर मैं जाती हूँ 3.5 पर, तो ये इस तरह शो कर रही है. 2.5 पे और कम हो गई, 2 पे और कम हो गई, 1.5 पे अच्छी हो गई. गॉट इट? So we can change the page, the line spacing setting for the paragraph or for the lines. We should go for the home tab, and in the paragraph option we go for this one option. Just beside the ये जो हमारे पास alignment है, left align, justify, center, इसके just beside पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास line spacing का option आ जाएगा. Got it? Here we have the line spacing. We can also go for the add space before paragraph, add space, remove space after paragraph. अगर हम पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस देना चाहें तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं. हम अपनी मर्जी से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं इसके मोर ऑप्शन पे जाकर इधर वाले ऑप्शंस पे जाके कर सकते हैं. लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस की यहाँ पर आपके पास जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा स्पेस आ जाएगा. आपकी मर्जी होगी लाइन एंड पेज ब्रेक पे जाके आप उसको चेंज करें. आपके प्रीव्यू में वो सब कुछ आता रहेगा. अलाइनमेंट चेंज करनी है, बॉडी टेक्स्ट चेंज करना है, कोलैप्स करना है बाय डिफॉल्ट पर जाकर, या मिरर इंडेंट करना है, या फिर यहाँ पे जितनी भी हम चाहें इंडेंट और स्पेसिंग देना वो हम यहाँ से दे सकते हैं. प्रीव्यू पे हमारे पास इसका सारा ऑप्शन गिवन होगा. ओके, जितनी चेंजेस करेंगे वो सब प्रीव्यू पर आएंगे. इसके अलावा कम ऑन पेज नंबर 65 पैराग्राफ स्पेसिंग आपको बता दी. पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास शॉर्टकट की फास्ट फॉरवर्ड पे दी हुई है. Control 1 is for single line spacing, Control 2 is for double line spacing, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Control 5 भी दबा सकते हैं. ये हम शॉर्ट कीज के थ्रू भी कर सकते हैं और हम होम टैब पर जाकर इसके थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, इनकी शॉर्टकट कीज है. अगर आप ये वाली देना चाहते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज Control 1 है, Control 2 है डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, और 1.5 के लिए Control 5 है. ओके, then come on पेज नंबर 66 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए. ये आपकी मर्जी है बेटा. अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको हॉरिजॉन्टली इसको ज़्यादा स्पेस देकर बढ़ाना चाहते हैं, तो वी गो फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ओवर हियर. यहाँ पर जाकर हम इसको डिपेंड कर सकते हैं अलाइनमेंट्स पे जाके. हॉरिजॉन्टली देना चाहें, सेंटर्ड रखना चाहें, राइट पे रखना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें, वी कैन गो फॉर दिस वन. ओके, वी कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन. एंड इफ यू वांट टू कीप लाइंस टुगेदर, हम एक साथ करना चाहें, कीप विद नेक्स्ट एक साथ जोड़ना चाह रहे हो, पेज ब्रेक उसके बिफोर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं,
तो यहाँ पर हम जिसको करेंगे, यहाँ पर आया विंडोज ऑर्फन कंट्रोल, यानी हम जो भी विंडोज पे कंट्रोल करेंगे तब उस पर आ जाएगा। ओके, तो ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, पेज नंबर 67 पर आके बुक में देखिए, लेफ्ट लाइन टेक्स्ट की आप देख सकते हैं, सेंटर लाइन टेक्स्ट की आप देख सकते हैं, राइट लाइन। अच्छा, ये मैं आपको शो करके भी दिखा देती हूँ। ओके, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करा है, जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पैराग्राफ। ओके, वी आर गोइंग फॉर दिस वन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे जाके यहाँ क्लिक करके अभी जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे पास अलाइनमेंट पे लेफ्ट हुआ है। अब हम जाके इसको सेंटर्ड कर देते हैं, तो ये हमारे पास ओके, एक मिनट, लेफ्ट को सेलेक्ट करके ओके कर रही हूँ, तो ये देखिए लेफ्ट पर आ रहा है। ठीक है, अब इसको दोबारा जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और लेफ्ट की जगह सेंटर्ड कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ गया हमारा ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। ठीक है, again I am selecting this one, go for the line spacing option and going and selecting the right alignment and clicking on it, so you can see this, it comes on that portion. उसके बाद दोबारा I am going for line spacing option and clicking on the justified, तो यहाँ पे सब इक्वल होकर आएगा इस तरीके से। राइट, दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये जितनी हमारी मर्जी है जिस तरह का हम करना चाहें, सो वी आर प्रेफरिंग ऑन द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन फॉर द left one. So we go for the alignment left and we are pressing this one, so it comes on the left option. ठीक है, वो लेफ्ट तरीके से अलाइंड होकर आएगा, ना जस्टिफाई आएगा और ना ही सेंटर इस तरीके से। इसके अलावा हमारे पास पेज नंबर 67 पे फास्ट फॉरवर्ड पे इसकी शॉर्टकट कीज भी दी हुई है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कंट्रोल एल, अलाइन टेक्स्ट सेंटर कंट्रोल ई, अलाइन टेक्स्ट राइट कंट्रोल आर एंड जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। सो वी कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको सेलेक्ट करा और कंट्रोल के साथ जे का बटन दबाया अपनी कीबोर्ड के थ्रू, कंट्रोल जे, तो ये जस्टिफाई पर आ गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एल करूंगी तो ये लेफ्ट आ जाएगा, अगर मैं कंट्रोल आर करूंगी तो ये राइट आ जाएगा। यू कैन सी द चेंजेस इन माय विंडो। ओके, व्हेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल ई तो ये हमारा सेंटर पे आ गया, बट आई एम प्रेफरिंग टू कंट्रोल एल तो हमारा लेफ्ट अलाइन चल रहा है। गॉट इट? समझ आ गई ये बात सबके? प्लीज शो मी द थम्स अप ऑप्शन, रिएक्शन पे जाके थम्स अप करें ताकि मुझे पता चले आप सबके समझ आ रही है। गुड। Okay, now printing a document, that is the last topic. That is so simple. If you go for the printing, you go for the option of file option. We can also go for the file. यहाँ से जाके हम प्रिंट के ऑप्शन पे जा सकते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से प्रिंट के प्रीव्यू भी आएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन भी गिवन है। लेकिन आपके पास शॉर्टकट की भी होती है जो मैं आपको शो करूंगी, कंट्रोल पी। जैसे आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें हम शो कर सकते हैं कि हमारा पेज सेटअप के साथ किस तरीके से हमारा प्रिंट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरीके से प्रिंट आएगा, नेक्स्ट पेज पे किस तरह आएगा, इस पेज पे किस तरह आएगा, कॉपीज कितनी देनी है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा प्रिंटर होगा। फिलहाल मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रिंट ऑल पेजेस, आपको सारे पेजेस करने हैं तो उसके बारे में आएगा, या फिर अगर आपको कोई सिलेक्टेड पेज करना है तो उसके बारे में आएगा। ठीक है, पेजेस यहाँ पर आपके गिवन होंगे। वन साइड पर करना है तो इधर, या मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर हम जैसे आपको आप देख सकते हैं जो आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में वर्कशीट गिवन है वो हमारी दोनों साइड पे प्रिंट हुई है, तो वो ये सेलेक्टेड हुआ है मैनुअली प्रिंटेड ऑन बोथ साइड। जब हम क्लिक कर देंगे तो आपका एक ही डॉक्यूमेंट जो आप अलग अलग पेजेस पे दे रहे होंगे तो वो आगे और पीछे होकर आएगा। अगर आप इसको प्रिंट वन साइडेड पे करेंगे तो आपका एक पेज आएगा, उसके बाद वो दूसरा पेज जो है वो सेकंड पेज पे करेगा। लेकिन अगर आप इसको टू साइड प्रिंटिंग देंगे तो वो आगे और पीछे प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर आपको देना है 1 2 3 करके पेज पहले आए फिर उसको मल्टी साइड पर जाए तो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लेटर्स दिए हुए हैं, आप जिस तरीके से लेटर्स चाह रहे हो कि इतने लेटर्स इतने स्पेसेस पे आ जाए, या फिर नॉर्मल मार्जिन दी हुई है आपको, यहाँ पे मैं नैरो मार्जिन क्लिक कर दूंगी तो वो नैरो मार्जिन के साथ प्रिंट करके देगा। वन पेज पर शीट, यानी एक पेज पे 2 शीट इस तरह से आ जाए, एक पेज पे एक शीट पर एक पेज का प्रिंट आए, या 2 पेजेस पर इस तरीके से डिवाइड होकर आए, या 4 पेजेस पर आए। आप देख सकते हैं इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब भी आप लोगों को कोई सर्कुलर आ रहा होता है तो वो एक पेज पे 4 आ रहे होते हैं, तो 4 पेजेस पर शीट करके आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आते हैं।
let me stop sharing first of all. Let me take the questions from you all so that I can understand. बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं अपने. Okay, so many questions raised up. तो मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ वन बाय वन अनम्यूट करें अपने आप को और क्वेश्चंस पूछें. जी बेटा. यस. Miss, it Yes. is time for our Nazara class. Okay, the time is of your Nazra class started. So I'm giving you the homework of bookwork of this chapter. We have finished with the copy work. In the next class, we will start the worksheet and we'll go for the worksheet work, the copy work. So you must have to maintain your copy before coming to the next class. And your homework is to complete the book exercise of page number 70 and 71. Question 1 and 2 you have to Do the book exercise. Yes, you have to do the book Miss, do the exercises. book exercise of Yes, page. yes. On page 70 and 71. Okay? Your book exercise 1 and 2 in page number 70 and 71. This is your homework. You have to do it at your home. And in the next class, we will start the copy work. Nobody should have to start the copy work by themselves. Okay? आप लोग खुद से copy work नहीं करेंगे, मैं करूँगा. Okay? So we'll see you in the next class. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Miss. Allah Hafiz, Miss. Hafiz. Allah Hafiz, Miss. Allah Hafiz. Bye. Bye.